Folks, for today, what we will be doing is we will be talking about the Union Budget and the summary of Chapter 2 of the Economic Survey. Chapter 1 we had done yesterday. So I'll give you a quick, because some of you have not attended yesterday's session. So what I will do is I will give you a brief summary of what we had done yesterday. तो जो हमने कल किया था वो सारा चीज़ हम एक बार देखेंगे, and then we will also see the Union Budget. So first let us see the Economic Survey. Let us go at the Economic Survey and see what we had covered. Now folks, I'm going to send you the notes for chapter 1. I've already made notes for chapter 1. Now since most of you will be preparing for civil services, I want you to look at that template and see that if you can replicate that kind of a template, because see इसके अंदर सिविल्स के अंदर you can't be having very long notes, because वो फिर revision का problem देंगे. So you have to have very crisp notes. So my chapter 1, if you can when you'll see, is within say 1/4 of a page. It's with a very small handwriting. You might not be able to understand in the sense, because those are my mnemonics that I've used, but that is how the note making has to be done when it comes to UPSC. You can't make it's already a voluminous document. You need so you can reduce your entire survey into 3 to 4 pages. When I say 3 to 4 pages, 3 to 4 sides, and that should be sufficient for your revision. Similarly, when you complete your budget, when I'll send you the notes for the budget, it should be in 2 sides. So when you revise it for your mains or for your prelims, it should be very handy. Okay. And when we'll be talking about budget, तो साथ में बहुत सारी schemes होंगी, and people who will be appearing for this year or next year, you need to read those schemes in and out, because there is a lot of focus of the examination on details of schemes as well. So let's start by discussing what is there in this year's economic survey, the first chapter. क्या क्या इश्यूज हैं. अगर वो आपको ब्रॉड इश्यूज समझ में आ गए तो आपको इकोनॉमिक सर्वे प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं देने वाला. ठीक है. एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही आपको ब्रॉड चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एंड दैट विल हेल्प you. Let's discuss. Okay. So when we talk about the economic survey talked about certain things. What are these things? The economic survey talked about that the state of the economy. When we say state of economy, तो state of economy में क्या क्या चीज़ें आ रही थी. State of the economy में we were talking about certain themes. पहला, that the first thing was that US and the Russia and Ukraine war की वजह से there has been hardening of prices. So there has been hardening of prices का मतलब क्या हुआ कि commodity prices, रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से commodity prices, iron, steel, कहते हैं commodity prices like wheat and agricultural commodities, oil, all these commodities, agricultural commodities के जो prices हैं वो बढ़ गए हैं. उस बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन हो गया है. इन्फ्लेशन भी रिप्रेजेंट इन इकोनॉमिक्स एज पाई, एंड प्रॉफिट भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में प्रॉफिट और माइक्रो इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन को पाई से लिखते हैं. एंड ये इन्फ्लेशन एडवांस इकोनॉमीज में भी हुआ है, एंड दिस इन्फ्लेशन हैज आल्सो रीच्ड द इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज. नाउ what has happened because of high inflation is that all these countries have gone for synchronous पॉलिसी टाइटनिंग. सिंक्रोनस पॉलिसी टाइटनिंग क्या होती है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज करते हो. इट्स एसेंशली इट इज़ एसेंशली अ हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी. ठीक है. जैसे इंडिया अपना रेपो रेट बढ़ाता है इन्फ्लेशन को देख के. सो दैट इज द काइंड ऑफ पॉलिसी दैट, एंड उसकी वजह से बेसिकली आपका ग्रोथ गिरेगा, क्योंकि आप इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करोगे. व्हाट विल बी द सेंट्रल बैंक डूइंग? सेंट्रल बैंक विल बी इंक्रीजिंग द पॉलिसी रेट इंक्रीज होगा. जैसे रेपो रेट इंक्रीज होगा तो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा. इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा तो अपने आप ही डिमांड, हर तरीके की डिमांड कम हो जाएगी. डिमांड कम हो जाएगी तो आउटपुट कम हो जाएगा. तो इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट. सो दैट इज वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. एंड वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इज कि अभी भी, इनफैक्ट अभी आप 2 घंटे पहले की न्यूज़ देखो तो फेडरल रिजर्व कह रहा है कि अभी भी हम धीरे धीरे और इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे.
which essentially shows that there is still a room. The monetary tightening is expected even further. अभी भी interest rate जो है और बढ़ेगा countries के अंदर, which essentially tells you that there is going to be some kind of a problem coming from the external side. Then वो already जो फेडरल रिजर्व है 425 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर चुका है. और दूसरी जो चीज़ इसकी वजह से हुई है, क्योंकि ये स्पेशली डॉलर की वजह से अगर हम फेडरल रिजर्व के बारे में बात करें, सो फेडरल रिजर्व ने जो 425 बेसिस पॉइंट से अपना फेडरल रिजर्व रेट इंक्रीज किया है, उसकी वजह से क्या हुआ है, उसकी वजह से आई टोल्ड यू दी डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड यूएस की अगर इंटरेस्ट रेट्स यूएस में बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो एवरीवन विल मूव बैक टू यूएस. तो कैपिटल आउटफ्लो इंडिया से बहुत ज़्यादा हुआ है. कैपिटल आउटफ्लो होने की वजह से इंडिया का रुपी जो है वो डिप्रिशिएट किया है. रुपी हैज़ डिप्रिशिएटेड, एंड बिकॉज रुपी हैज़ डिप्रिशिएटेड दिस हैज़ ऑल्सो लेड टू करंट अकाउंट डेफिसिट. तो करंट अकाउंट डेफिसिट दो अकाउंट्स में बढ़ रहा है. एक वर्ल्ड ट्रेड जो डॉलर डिनोमिनेटर रहता है, तो वो आपकी रुपी की वैल्यू गिर रही है. दूसरी चीज़ें ही महंगी हो रही है, कमोडिटीज़ ही महंगी हो रही हैं. So these two things are making the current account deficit as a vulnerable point for us. And उसके साथ साथ जो IMF है उसने क्या कहा है, IMF ने कहा है कि 2022 और 23 को अगर हम कंपेयर करें तो 23 के अंदर दुनिया का जो क्या कहते हैं ग्रोथ है, 22 के अंदर अगर हम वर्ल्ड की ग्रोथ बोलें तो वो दैट वाज 3.2%. 23 के अंदर हम बोल रहे हैं 2.7%. तो दैट मीन्स वर्ल्ड की जो ग्रोथ है वो ही गिर जाएगी, बिकॉज द इंटायर वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स. एंड बिकॉज द इंटायर वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, द ग्रोथ विल गो डाउन. इंडिया के केस में भी वो कह रहे हैं कि इंडिया के केस में भी ग्रोथ जो है वो कम होगी. 22 में वी आर एक्सपेक्टिंग 6.8. हमारे कल बजट में बोला है और सर्वे में बोला है 7%. 23 में वी आर एक्सपेक्टिंग 6.5%. दे आर सेइंग 6.1. IMF कह रहा है 6.1%. तो बोलते हम ज़्यादा गिर तो जाती है. तो ये ग्लोबल हेडविंड्स हैं जो हम फेस कर रहे हैं. और साथ में एक और प्रॉब्लम चल रही है कि चाइना का भी स्लो डाउन चल रहा है, और चाइना का स्लो डाउन की वजह से ये आपको डिक्लाइन दिख रहा है. सो ऑल ऑफ दीज आर दीज फैक्टर्स. नाउ कमिंग टू द अदर फैक्टर्स दैट वी टॉक्ड अबाउट कि what has happened in terms of growth कैसे हुई है. India is the fastest growing large economy. So among the large and major economies, India is the fastest growing. So how is India the fastest growing? It's because India में इस साल कंजम्पशन बहुत तेज़ी से हुआ है. कंजम्पशन का जो शेयर है, प्राइवेट कंजम्पशन का जो शेयर है, दैट हैज़ बिकम 58%. ठीक है, वो प्री पैंडमिक वाला लेवल को क्रॉस कर रहे हैं हम. सो बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज द कंजम्पशन इज इंक्रीजिंग, तो हमारा ग्रोथ क्या होता है, GDP can be decomposed into C plus I plus G plus NX. गवर्नमेंट ये भी बढ़ा रही है और ये बढ़ना वापस शुरू हो गया. और ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये गवर्नमेंट ने खूब सारी इन्वेस्टमेंट करी है. इसको हम GCF बोलते हैं, याद रखना, क्योंकि इस साल के बजट के अंदर बहुत काम की चीज़ें हैं. ये गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा करी है और यही थीम है पूरे इकोनॉमिक सर्वे और बजट की. थीम ही यही है दैट गवर्नमेंट टिल नाउ बिकॉज ऑफ द पैंडमिक has taken the initiative of boosting the investment. Investment इस साल जो है 2022-23 में इस बार 34% ऑफ GDP हो गई. ठीक है, तो 34% ऑफ GDP इन्वेस्टमेंट होने की वजह से आपका ग्रोथ रेट जो है ठीक ठाक मैनेजेबल है. सो नाउ द पॉइंट इज कि अगर आपका इन्वेस्टमेंट क्या कहते हैं, और ये दिस इज हायर देन 2014-15 से भी ज़्यादा हाई है. तो ये इन्वेस्टमेंट क्यों हो रही है, क्योंकि ये गवर्नमेंट लेड इन्वेस्टमेंट है. गवर्नमेंट अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है. इन दिस ईयर बजट वी विल सी गवर्नमेंट अपना कैपिटल बजट जो है 33% से और इंक्रीज कर लिया है. इट इज़ मेड इट 10 लाख. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट दीज लाख करोड़ आर. So the government has essentially increased its capital expenditure. और गवर्नमेंट कह रही है कि अब मैं खर्चा कर चुकी हूँ, मैंने रोड्स बना दी, रेलवेज बना दिया, पोर्ट्स बना दिया, ऑल ऑफ दिस आई हैव क्रिएटेड एंड आई हैव क्लीन दी बैंक्स एज वेल. तो बैंक्स के पास NPAs अब कम है, क्योंकि पहले NPAs थे, बैंक की NPAs क्लीन करवा दी हैं. और क्रेडिट और MSME के क्रेडिट के लिए बहुत सारी स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने लाई हुई है. We'll talk about a couple of schemes today. And गवर्नमेंट ने बहुत सारा
डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया है. तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ आधार कार्ड, पैन एनेबल्ड पैन कार्ड, एंड देन यू हैव दिस ONDC, ठीक है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स. तो ये बहुत सारी चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे. तो गवर्नमेंट ने बहुत सारा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया है. सो बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंक्स ठीक हैं और कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट भी अब ठीक होनी शुरू हो गई है. नाउ इट इज़ द टाइम कि प्राइवेट सेक्टर अपना इन्वेस्टमेंट लेके आए. अभी तक सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही थी, अब प्राइवेट सेक्टर को धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. बट इफ़ यू सी आवर ग्रोथ पैटर्न्स, हमारा जो टिपिकल ग्रोथ पैटर्न है इंडिया का अगर आप GDP देखोगे फ्रॉम द डिमांड साइड, तो इट्स C+I+G+NX. तो ये जो फैक्टर है और ये जो फैक्टर है, ये दोनों कंजम्पशन ही है. गवर्नमेंट कंजम्पशन है, ये प्राइवेट कंजम्पशन है. प्राइवेट कंजम्पशन यू गिव समवेयर अराउंड 60% ऑफ GDP और ये 10%. तो इंडिया का 70% जो ग्रोथ है that 70% is fueled by कंजम्पशन बेसिकली. अब पिछले कुछ टाइम से क्या हो रहा था, पिछले 3-4 सालों से ये जो प्राइवेट कंजम्पशन है दैट वाज गोइंग डाउन. नाउ दिस प्राइवेट कंजम्पशन हैज पिक्ड अप. तो इसीलिए हमारी ग्रोथ हुई है इन 2022-23. व्हेन यू से कि व्हाई हैज़ द ग्रोथ पिक्ड अप इज बिकॉज 2022-23 में प्राइवेट कंजम्पशन हैज़ पिक्ड अप. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई प्राइवेट कंजम्पशन हैज़ पिक्ड अप. कि प्राइवेट कंजम्पशन अगर बढ़ी है तो प्राइवेट कंजम्पशन क्यों बढ़ी है? इट इज़ रिलेटेड टू अ कंसेप्ट कॉल्ड एज पेंट अप डिमांड. नाउ व्हाट इज पेंट अप डिमांड? इट इज़ समथिंग लाइक कि कई बार हम जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए, तो एग्ज़ाम्स ख़त्म होते जाते हम एकदम फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं कि यार आज हम मूवीज़ देखेंगे, आज हम सिर्फ पार्टी करेंगे. सो दैट इज़ कि आपने अंदर बिल्ट इन फ्रस्ट्रेशन और बिल्ट इन पोटेंशियल रखा हुआ है और उसको आप लेट ऑफ कर रहे हो, रिलीज़ कर रहे हो. सो इट्स समथिंग लाइक रिलीज, जैसे पेंट अप स्टीम जो एकदम से रिलीज होती है, इट्स लाइक रिलीज ऑफ स्टीम. रिलीज ऑफ स्टीम. दैट व्हाट हैड हैपेंड वाज दैट पीपल हैड कंट्रोल्ड देयर कंजम्पशन. फॉर एग्जांपल लोग बाहर कोविड के 2 सालों में लोग टूरिज्म पे नहीं गए, ठीक है. आपने यू माइट हैव हर्ड अबाउट दिस टर्म एज रिवेंज शॉपिंग सुना किसी ने? आई टेल यू अनदर थिंग अबाउट दिस रिवेंज जो हमारी मेंटरशिप में विल स्टार्ट. हैज एनीवन हर्ड दिस टर्म रिवेंज कंजम्पशन या रिवेंज शॉपिंग? चैट बॉक्स में दो, एनी आइडिया किसी को? सो रिवेंज शॉपिंग. So Q&A में भी लोगों ने, so you can write in Q&A also just in case you want to say something anonymously. So essentially when we talk about revenge shopping कि एकदम से कोविड में लोग खर्चा नहीं कर पा रहे, मूवीज़ नहीं जा पा रहे, तो लोग एकदम से बाहर निकल के बोल रहे हैं एकदम से कि नहीं, now we will do this only, we don't really know whether we'll live or not, so let's enjoy the life. So that is the kind of philosophy that this has. So in fact philosophy में भी एक चाणक्य philosophy होती है, उसको थोड़ा सा ये लोग ये इस तरीके से सोचा जाता है. So पेंट अप डिमांड वही है कि ये डिमांड बिल्टअप था बट इसको आउटले नहीं मिल रहा था. तो यूजुअली जैसे why call this as a revenge kind of eating in case of competitive exams. Usually, and मैंने भी ये करा हुआ है by the way, and this is something that I'll correct in the mentorship, is that if you're preparing for civil services or if you're preparing for such a hard examination, people think that they can eat anything, they can drink anything, और वो अपने बॉडी को और पूरा कंट्रोल छोड़ देते हैं अपनी फिजिकल हेल्थ का. So typically what people in fact when I talk about myself, I remember gaining 10 to 15 kgs during prep. तो लोग फिजिकल एक्सरसाइज जो है बिल्कुल ख़त्म कर देंगे अपनी, ठीक है, एकदम ज़ीरो कर देंगे और बिल्कुल they will eat anything that comes their way. So people who will be joining the mentorship, I mean there are 3-4 things that we'll be taking care of. So one is that morning sessions जो हमारे 4 to 5 वाला morning session. The other thing is morning session तो is okay, but if this is not there again you will not be eligible for the second round. So इसके अंदर we want
some kind of an aerobic exercise and your diets to be maintained. तो we'll proper keep a proper आपका chart कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि this examination when you are preparing for such an examination it's not just your mind को ट्रेन करने के लिए ये भी चाहिए, इसके बिना भी माइंड नहीं चलेगा, स्लीप के बिना भी माइंड नहीं चलेगा. तो ये सारी चीज़ें वील हैव टू मॉनिटर विच विल क्रिएट द नेसेसरी कंडीशंस फॉर योर सक्सेस. हो ना हो ज़रूरी नहीं, बट बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो ज़रूर क्रिएट हो जाएगा, दैट यू आर क्रिएटिंग द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो फॉर यू टू क्रैक द एग्जामिनेशन. Cracking or not cracking depends on whether you have worked hard in academics or not. I'll talk about what the enrollment process is. We'll finish the budget session in next 3 days and then I'll talk about the session. Okay. So the session will be, in general, the session will be from 4 to 4:20. We'll cover meditation. I'll talk about that, Himani, and then 4:20 onwards we'll do this. So Himani's question is depreciation as currency because yes, it does make our exports. So if you see the question that is there, so the question is that the depreciation of the currency is because of the Fed rate hike, but it does not it lead to the exports being competitive. So what she's saying is that जब रुपी जो है वो 70 रुपीज़ से 80 रुपीज़ हो गया, तो हमारी करेंसी तो सस्ती हो गई ना. जब हमारी करेंसी सस्ती हो गई, इफ़ आवर करेंसी बिकम चीपर, देन व्हाट विल हैपन, देन योर एक्सपोर्ट्स विल इंक्रीज, क्योंकि यही एक फैक्टर है. बट द प्रॉब्लम इज देयर मल्टीपल प्रॉब्लम्स. द फर्स्ट प्रॉब्लम इज कि एक्सपोर्ट आप तब कर पाओगे जब ग्लोबल एनवायरनमेंट जो है इट्स बेनाइन. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट एन एनवायरनमेंट wherein the IMF and everyone else is saying that the world is going through a recession, the world might go through a recession in the sense that the advanced economies might go through a recession and world का growth गिर जाएगा, so your export का जो potential है वो ही कम हो जाएगा. तो पहली चीज़ तो है कि it will not realize because export potentially आपका कम हो रहा है. दूसरी चीज़ is that we are import, even for our export, the import intensity of our exports is very high. तो अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई कमोडिटी, फॉर एग्जांपल हम मोबाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो मोबाइल एक्सपोर्ट करने के लिए भी उस मोबाइल बनाने के लिए जो हमने सामान इंपोर्ट किया है वो भी बहुत हाई है. सो हमारा इंपोर्ट इंटेंसिटी ऑफ आवर एक्सपोर्ट एंड इन जनरल द इंपोर्ट इंटेंसिटी, कितना हम इंपोर्ट करते हैं, वो बहुत ज़्यादा हाई है. सो दैट एसेंशली मीन्स कि अगर आपका ये 70 से 80 रुपये हो गया है तो आपके इंपोर्ट्स बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे. ठीक है. तो typical जो J curve वाला, since Mani you are from economics background, so you can relate it to the J curve का aspect जो है कि this is how the economy will go through. but ये जो है ये काफ़ी retrenched सा होगा ये वाला portion. So and assuming the Marshall Lerner condition hold by the way, जो मैंने अभी बोला वो बाकी सब लोग भूल जाना, since I know that she's from an economics background, that's why I've given these technical terms. Let's not talk about Adani. That will take us to another sphere altogether. ये Adani's वाला क्या thing है. But yes, that has so तो Dan has asked कि thanks की balance sheets clear हो गई है, but Adani Enterprises क्या फिलहाल तो नहीं है. But yes, it is a very potential point for a economic crisis in India because बैंक्स का काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर है अदानी के साथ. तो देर इज दिस डोमेस्टिक प्रॉब्लम लूमिंग लार्ज देयर. सो एनीवेज, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि कंजम्पशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा, और ये कंजम्पशन और कहाँ दिख रहा है हमें, ये पेंट अप डिमांड आपको दिख रही है इवन इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग डिमांड पिछले कुछ टाइम में बहुत तेज़ी से इंक्रीज हुई है. एंड उसके चीज़ में आप देखो तो इन्वेंट्रीज जो हैं वो कम होनी शुरू हो गई है. इन्वेंट्री बेसिकली क्या होता है, जो बने हुए फ्लैट हैं, बने हुए घर हैं, वो जब गिरने लग जाए तो उसका मतलब क्या है, लोग खरीदने वाले ज़्यादा आ रहे हैं और आपका सामान बिकना शुरू हो गया. तो इन्वेंट्रीज में रिडक्शन हुआ, विच शोज कि ये पेंट अप डिमांड और कंजम्पशन बढ़ रहा है. सो दिस इज बीन वन थिंग. द अदर थिंग इज दैट गवर्नमेंट ने अपना कैपेक्स जो है वो काफ़ी इंक्रीज कर दिया है, और इट हैज़ ऑल्सो बीन हेल्प बाय स्टेट्स by
बॉयंट टैक्सेस क्या होता है? देयर इज समथिंग कॉल्ड, अच्छा तो पेंट अप डिमांड पे एक आपका क्वेश्चन आ सकता है इस साल प्रीलिम्स में, और दूसरा एक है कि आपका व्हाट इज दिस बॉयंसी इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, ठीक है, कि अगर आपका जीडीपी जो है वो बढ़ा 1% से, तो आपके टैक्सेस कितने परसेंट से बढ़ रहे हैं। इस तरीके से आप बॉयंसी देख सकते हो। बॉयंसी एक्चुअली कैन बी सीन इन मल्टीपल वेज, नॉट जस्ट दिस। तो बॉयंसी वो आपको बता रहा है कि आपके टैक्सेस किस रेट से बढ़ रहे हैं। तो हमारे क्या कहते हैं टैक्सेस हैं वो काफ़ी बॉयंट हैं, और विच बेसिकली अगेन शोज, जिसकी वजह से हमारे पास रेवेन्यू है, और वो रेवेन्यू हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में स्पेंड किया। तो कैपेक्स हैज़ बीन वन मेजर थीम फोक्स, यू कैन नॉट फॉरगेट दिस थीम। तो कैपेक्स और कंजम्पशन जो है, ये थीम्स को आपको याद करना है फॉर दिस ईयर्स बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे एज वेल। देन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि बैंक का क्रेडिट्स जो है, अच्छा लेट्स टॉक अबाउट द अदर थिंग कि बैंक क्रेडिट। सो कैपिटल एक्सपेंडिचर, अंशिता, कैपिटल एक्सपेंडिचर जो है वो बेसिकली इट हेल्प्स यू। सो let's talk about capital expenditure and revenue expenditure. ये आज हम बजट के अंदर भी बात करेंगे. I'll send you one of this thing videos, previous year videos as well, which you can understand capital expenditure, revenue expenditure. तो revenue expenditure जो है it is something like कि आप कोई asset और liability, स्पेशली आप कोई asset नहीं क्रिएट कर रहे हो एक्सपेंडिचर करके, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर करोगे तो आपका एसेट्स जो हैं वो चेंज होते हैं, ठीक है, एसेट्स इंक्रीज डिक्रीज होते हैं। तो अब आप क्या चाहते हो? आप यूजुअली चाहते हो, सपोज मैं आपसे पूछूं कि टुडे इफ आई गिव यू 1,00,000 रुपीज़, व्हाट वुड यू लाइक टू डू? अगर आप एक आईफोन खरीद लेते हो तो दैट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंड, दैट एक्चुअली इज़ एन एसेट, बट अगर आप सपोज आपने कोई और सामान खरीद लिया, आपने पार्टी कर ली, तो आपने क्या किया, आपने ये पैसे यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डाल दिए। बट सपोज आपने इवन मोबाइल फ़ोन, आई वुड से वुड नॉट बी अ गुड इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, क्योंकि उसका रिटर्न नहीं है। बट आपने वो 1,00,000 रुपये से आपने क्या किया, आपने उस 1,00,000 रुपीज़ से कोई कोर्स करा, अच्छा कोर्स किया, और उस कोर्स से आपका पोटेंशियल बन गया। पोटेंशियल बनने के आपके फर्दर जो फ्यूचर में इनकम अर्निंग पॉसिबिलिटीज़ हैं वो इंक्रीज हो गई। दैट इज़ वॉट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि ये जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, बिकॉज ये लॉन्ग रन के अंदर आपको बेनिफिट देगा, ये आपको शॉर्ट रन के अंदर ग्रेटिफिकेशन देगा। जो आपको क्या कहते हैं, जो आपको डिजिटल, जो मैं कहता हूँ मेंटरशिप में भी बात करेंगे डिजिटल डिटॉक्स की, कि ये आपको डिटॉक्स चाहिए आपको यहाँ से। हम क्या करते हैं, हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं। वी वांट कि यार मुझे 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 मज़ा आ जाए स्क्रॉल करने में, उसको क्या कहते हैं, स्क्रॉल करने में मुझे मज़ा आ जाए इंस्टाग्राम को, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिल रही है। बट व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू शट दैट थिंग ऑफ and do this. So I'll discuss tax buoyancy and tax elasticity similar. Since we have to cover that in budget this year, so I'm holding off these two terms for now. But yes, these are two important terms. Tax, do remind me. Tax elasticity and tax buoyancy. We need to cover these two terms फॉर अंडरस्टैंडिंग कि गवर्नमेंट इतना खर्चा कैसे कर पा रही है, और गवर्नमेंट किस एक्सपेक्टेशन से ये जो प्लान्स बनाए हैं किस एक्सपेक्टेशन से बनाए। देन सो व्हेन वी टॉक अबाउट, तो जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं, तो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर लॉन्ग टर्म का एक्सपेंडिचर है जो हम करना चाहते हैं। अब ये एक्सपेंडिचर या तो गवर्नमेंट कर सकती है या प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर कुछ टाइम से, क्योंकि कोविड है, उससे पहले स्लो डाउन था, उससे पहले बैलेंस शीट्स का इशू था जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। तो बहुत सारे इश्यूज थे इससे पहले, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर नहीं कर पा रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने रोल लिया इसको करने का, और गवर्नमेंट ने कैपेक्स जो है वो बढ़ाया है। तो गवर्नमेंट ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। नाउ इट इज़ फॉर द प्राइवेट सेक्टर टू कम इन एंड इन्वेस्ट. You can think of this, people from economics, a lot of you are preparing with economics optional, you can think of this in terms of unbalanced growth strategy as well. अनबैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटेजी कि गवर्नमेंट ने आके आपका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर दिए, सोशल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिए. नाउ इट इज़ द टर्न ऑफ द प्राइवेट एंटरप्राइजेस टू कम इन and invest and grow. So this is how the government has worked. Yeah.
फाइनली भी हमने कहा इन्फ्लेशन के बारे में बात करी कि इन्फ्लेशन जो है वो हाई है, बट इन्फ्लेशन अगर ओवरऑल ईयर का देखोगे तो 6.8% है, वो ज़्यादा है। बट इन जनरल अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आना शुरू हो गया, बट दिस इज़ ऑल्सो अ पेन पॉइंट फॉर अस बिकॉज वी डोंट नो दैट व्हाट विल हैपन इन फ्यूचर in terms of inflation. Then we had talked about inclusion. Inclusion के अंदर हमने कहा था कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इंक्रीज हुआ है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है। NREGA जो है, इफ यू हैव रेड द चैप्टर यू विल रीड दैट NREGA जो है उसमें लोगों ने अपनी लैंड पे काम करना जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया है। एंड गवर्नमेंट ने MSMEs के लिए इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लॉन्च करी थी, जिसकी वजह से बैंक्स ने अब MSMEs को भी पैसा देना शुरू कर दिया और क्रेडिट साइकिल ठीक होना शुरू हो गया। सो ऑल ऑफ दिस शोज दैट वी हैव रीच्ड दिस स्टेज ऑफ टेक ऑफ। नाउ इज द टाइम कि अब आप टेक ऑफ कर पाओ। तो जो हम सेकेंड चैप्टर में आज हम बात करने वाले हैं सर्वे की, वो यही करेंगे 98 से 2002 के बीच में एंड 2014 से 2022 के बीच में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। इधर भी NDA की गवर्नमेंट थी, अटल बिहारी वाजपेयी, यहाँ भी NDA की गवर्नमेंट थी। यू कैन कॉल दिस एज NDA 2 एंड NDA 3 अगर आप बोलना चाहो, इफ़ यू कॉल दिस एज NDA 1। नाउ इस टाइम के अंदर सरकार ने, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल FRBM का रिफॉर्म किया था, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा मेजर रिफॉर्म किया था, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का। देन FDI के रिफॉर्म्स किए थे, डिसइन्वेस्टमेंट के रिफॉर्म्स किए थे। सो बहुत सारे रिफॉर्म्स किए थे सरकार ने इस टाइम पे। बट बिकॉज क्राइसिस वॉज देयर, क्राइसिस एक के बाद एक क्राइसिस आया था। इसमें पहले तो आसियान क्राइसिस था 97 का, फिर उसके बाद क्या कहते हैं ड्रॉट्स आए। ठीक है, ड्रॉट्स आए 2। फिर उसके बाद आपका .com बबल आया। ठीक है, .com बबल। फिर उसके बाद 9/11 आ गया। तो एक के बाद एक क्राइसिस आया जा रहा था, जिसकी वजह से ग्रोथ पोटेंशियल जो है, ये जो आपने रिफॉर्म्स किए, इसका पोटेंशियल मिला 2003 से 2008 के बीच में। इन रिफॉर्म्स का इम्पैक्ट यहाँ पड़ा। सेम हम यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर भी सेम एनालॉजी है कि हमने इस पीरियड में रिफॉर्म्स किए हैं बहुत सारे। हमने अपना पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा किया है, गवर्नेंस रिफॉर्म्स किए हमने सारे, एग्रेरियन में प्रोडक्टिविटी के रिफॉर्म्स किए हैं हमने क्या कहते हैं ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स करा है, ईज़ ऑफ लिविंग करा है। ठीक है, हमने बहुत सारे ऐसे रिफॉर्म्स किए हैं, बैंक्स को क्लीन किया है हमने। ठीक है, हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स किए हैं, यहाँ पर सबको अकाउंट्स दिलाए हैं जनधन योजना में। तो जैसे हमने यहाँ रिफॉर्म्स किए, और इंफ्रास्ट्रक्चर तो कैपेक्स तो गवर्नमेंट ने जो किया है वो किया ही है। सो जैसे यहाँ रिफॉर्म्स किए थे, सरकार ने यहाँ रिफॉर्म्स किए हैं, बट इस पीरियड के अंदर भी सरकार को बहुत ज़्यादा क्राइसिस आए हैं। पहले ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम थी, फिर आपके 2018 में 4 बैलेंस शीट प्रॉब्लम आई, फिर आपकी NBFCs में भी प्रॉब्लम हो गई बेसिकली 4 बैलेंस शीट में, फिर आपका कोविड का क्राइसिस आया, चाइना का बीच में स्लो डाउन चल रहा था। ठीक है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स आए। तो इसलिए अब क्योंकि ये प्रॉब्लम्स धीरे धीरे, और फिर यूक्रेन और रशियन वॉर आई, तो क्योंकि अब ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे डिसअपियर हो रही हैं, so now we are saying कि 2023 onwards in this decade we will be able to grow at a very fast pace just like we grew at between 2003। ये हमारा कंपैरिजन है मीडियम टर्म का कि why 2023 onwards हमारी ग्रोथ जो होगी वो अच्छी मीडियम ग्रोथ होगी, अराउंड 7%। so this is the focus point of chapter number 2. I'll send you the mark copy of chapter number 2 today in the afternoon. People who are preparing for civils without economics optional, chapter 1 and chapter 2 are important. Rest you can just go through my summaries and that is sufficient. But and जो overall summary होती है, और मैं जो boxes बोलता हूँ वो पढ़ने के लिए बोलूँगा, उसके अलावा और कुछ नहीं करना। पर बाकी सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, मतलब ये दोनों चैप्टर तो आपको देखने। We expect a couple of questions to come from these two, at least these two chapters, क्योंकि ओवरव्यू दे रहे हैं। सो दिस इज अबाउट चैप्टर 2। अच्छा, हमारे चैप्टर 1 के अंदर फिर हमने G20 के बारे में बात करी थी कि G20 का फोकस क्या होगा। सो दिस इज व्हाट वी हैड डिस्कस्ड। ये आज की नई चीज़ है जो हमने करी है। ठीक है,
let's go through the survey now. So मैंने ये सारा का सारी चीज़ें करा दी नाउ, और अब मैंने आपको डिटेल में पूरा सर्वे भी बता दिया. नाउ यू कैन इजीली गो थ्रू ऑल ऑफ दीज थिंग्स. आई हैव ऑलरेडी मार्क्ड फॉर यू. सारे आप ये देख सकते हो. उससे अब आपको स्टोरी समझ में आ जाएगी. एटलीस्ट आपको स्टोरी में प्रॉब्लम नहीं होगी. प्लीज़ गो थ्रू दिस नाउ. यहाँ पर आपको ये सारे ग्राफ्स मिल जाएंगे, ठीक है, जो हमारे काम के ग्राफ्स हैं. ये मीडियम टर्म के बारे में बात करना है. ये मैंने गलती से यहाँ लगा दिया. we'll be talking about this thing अभी. देखो पहले शॉर्ट में ही बात कर लेते हैं ना, आसान हो जाएगा. नाउ इफ वी टॉक अबाउट what has happened between 2004 and 2014 and 2022. I'll send the notes, Anshita, and I'll attach them onto the group. So folks, if you have, I mean you are part, most of you are part of that group, तो group पे आ जाएंगे सारे के सारे notes. So that you can use there. So but अभी मैं बना रहा हूँ. So I'll send you, if you want I can send you the state of the economy के notes, so I can send. And but I want to make इसका medium term के notes भी, and then I'll send you the entire page जिसमें सब कुछ है. Now when we talk about but again folks, आपको मेरे notes नहीं चाहिए, आपको अपने notes बनाने हैं. ध्यान रखना, जो इंसान अपने नोट्स बनाता है, मतलब इन दी सेंस कि बाकी के नोट्स भी यूज़फुल होते हैं, बट नोट्स सबसे अच्छे आपको अपने ही समझ में आएंगे. एंड नोट्स हमेशा क्रिस्प होने चाहिए. यू कांट मेक लेंथी नोट्स, स्पेशली इन यूपीएससी यू कांट गो फॉर दैट. तो एक तरीके से जिसको हम बोलते हैं चीट नोट्स. चीट नोट्स शायद कई लोगों ने सुना हो कि व्हाट आर चीट नोट्स. चीट नोट्स इज बेसिकली फर्रा, जिसको हम बोलते हैं, चीटिंग करते हैं जिससे, उस तरीके के आपके चीट नोट्स होने चाहिए. सो यू शुड हैव चीट नोट्स फॉर यूपीएससी. चीटिंग नहीं करनी, बट नोट्स वैसे बनाने, ठीक है. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट हैज हैपेंड बिटवीन 2014 एंड 2022. Between 2014 and 2022 you should have reforms for, this is we have set reforms for New India, सबका साथ सबका विकास. इसमें आपने क्या किया, इसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स आपने ठीक किया और ईज ऑफ लिविंग करा. कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स रखी है, भारतमाला, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपका क्रिएट किया, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, KYC जो आपका आधार इनेबल्ड है, जनधन योजना, सागरमाला जो आपने पोर्ट्स और ये सारी चीज़ें रेडी करी हैं, UPI, डिजिटल ट्रांजैक्शन, गति शक्ति, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, GST, देन एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एंड सर्विसेज का भी ऑफटेक काफ़ी ज़्यादा हुआ है. सो यू हैव डन मल्टीपल थिंग्स. इसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ है, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस हुआ, क्योंकि हर चीज़ डिजिटल हो गई है, ठीक है. प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन जो है अब इंक्रीज होना शुरू हो गया है. पब्लिक गुड्स आपने क्रिएट करेंगे, ये सारे पब्लिक गुड्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर वाले. और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी यू इंक्रीज थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर. सो ऑल ऑफ दिस हैज़ हैपेंड इन इंडिया, जिसकी वजह से अब आपका पोटेंशियल जो है वो बन जाता है फ्रॉम, व्हेन आई से पोटेंशियल ऑफ द इकोनॉमी, 2023 ऑनवर्ड्स आप पोटेंशियल बन जाता है, क्योंकि ये सारे काम ऑलरेडी हो गए. और ये सारी चीज़ें आपको दिखती हैं यहाँ पर भी कि अगर ये 100 क्या है, 100 बेसिकली बेस वैल्यू है कि कहाँ से शुरू हुआ. मान लो आज आपकी नॉलेज 100 है. टू एक्सप्लेन यू दिस, मान लो आज आपकी नॉलेज 100 है, तो बाय द टाइम आप यूपीएससी के लिए, और आप मान लो 2024 का अटेम्प्ट लिख रहे हो, बाय द टाइम यू रीच मे ऑफ 2024, आपका नॉलेज जो पॉइंट होगा, अगर आज 100 है तो वो 500 हो चुका होगा, 5 टाइम्स हो चुका होगा आपकी आज की नॉलेज बेस से. इतना ज़्यादा फ़र्क आ जाता है यूपीएससी प्रिपेयर करने में. सो यही हम चेक कर रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है 100 थी, ठीक है, 100 थी 2001 में, तो 2020 में कितनी है, 215%. तो दैट मीन्स 2 गुना हो गई है. कार्गो हैंडलिंग पहले 100 थी 2014 में, तो आज की डेट में 80% से बढ़ गई है 2020 में. तो ये हम ट्रैक कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्रीज हुआ है. तो ये दिल बी अ डायग्राम ऑन दिस. देन यू हैड अ स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन FDI ऑल्सो. FDI भी बहुत तेज़ी से इंक्रीज करा है. वी हैव बिकम अ मच मोर अट्रैक्टिव इकोनॉमी बिकॉज ऑफ आवर रिफॉर्म्स. एंड यही मैं आपको बोल रहा था कि कंपेयर करो 1998 को 2014 2022 के साथ. सो इफ़ यू कंपेयर, यू विल सी कि यहाँ पर न्यूक्लियर टेस्टिंग करी, जिसकी वजह से हमारे पास सैंक्शंस लगे.
कॉर्पोरेट और बैंक जो बैंक्स थे वो अपनी बैलेंस शीट को रिपेयर करने में लगे हुए थे। 2 सक्सेसिव ड्रॉट्स थे, इसको .com बबल बोलते हैं। यूएस में रिसेशन आया, 9/11 हुआ। और उसके कंपैरिजन में अगर अभी हम देखें कि हमारी इकोनॉमी में 2014 से इसके अंदर 22 में क्या हुआ, बैंकिंग, नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की बैलेंस शीट स्ट्रेस में, जिसको हम बोलते हैं 4 बैलेंस शीट प्रॉब्लम। ठीक है, फिर दिस आई एक्सप्लेन मोर इफ एंड व्हेन वी विल डू इकॉन। तो वहाँ पर ये हम देखेंगे व्हाट इज दिस 4 बैलेंस शीट। बेसिकली बैंक्स की बैलेंस शीट और कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट बिल्कुल खराब है। देन अनप्रेसिडेंटेड पैंडेमिक शॉक followed by tightening conditions in the world market plus Russia और यूक्रेन वॉर। So all of this has led to these shocks। इस टाइम पे हमने रिफॉर्म्स क्या किया, हमने प्राइवेटाइजेशन किया, एसेट रिकवरी किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में गोल्डन क्वाड्रिलेटरल FRBM और इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेशन किया। यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यूनिक आइडेंटिटी बनाई, फाइनेंशियल इंक्लूजन किया, GST लेके आए, IBC लेके आए, प्राइवेटाइजेशन किया, टैक्स को रैशनलाइज किया, डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस स्पेशली कंपनीज एक्ट को हमने डीक्रिमिनलाइज किया, कुछ चीज़ें। वैक्सीन्स का बहुत बड़ा रोल आउट लेके आए, आत्मनिर्भर भारत एंड पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया। तो ऑल ऑफ दिस हैज हैपेंड। और ग्रोथ रिटर्न्स यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो ग्रोथ हुई वो 2003 ऑनवर्ड्स हुई, जो आपने पहले रिफॉर्म कर दिए थे। अब यहाँ पर हम कह रहे हैं कि क्योंकि कॉर्पोरेट्स की बैलेंस शीट जो है वो डी लेवरेज हो गई है, इन द सेंस उनके बैलेंस शीट्स पे लोन्स अब कम हो गए हैं, तो अब वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट करेंगे तो अपना GDP बढ़ जाएगी। This is what is going to happen in the next few years। तो growth magnets क्या होंगे in the coming decade? Healthy and recapitalized banking sector and corporate sector, digital economy, so digital technology based economic reforms, and अब आप अपना potential जो है जैसे आपका ये वन ऑफ जो आपका शॉक है ये डिसिपेट होना शुरू हो जाएगा, तो आप इंडियन इकोनॉमी में अपना पोटेंशियल अचीव करने लग जाए। आई मार्क दिस चैप्टर ऑल्सो, आई सेंड यू दिस चैप्टर 1 में किसी को कोई डाउट? एनी डाउट फोक्स? सो वी विल डू चैप्टर 2 एंड देन फॉर द बजट let me just tell you certain things in the budget that you need to see. Then what I want you to do is, for today I want you to see certain videos of mine, 10-15 मिनट की वीडियोस हैं, you can watch those videos and that will help you in terms of क्या कहते हैं, in understanding की budget process क्या है। So what I want you to do is there is already a budget course, ठीक है, there is already a budget course that I've already uploaded। It's on edfolio.in। It's a free course there। उसमें आप एटलीस्ट बजट का पहले का शुरू का प्रोसेस देख लो, that will help you a lot। So go to www.edfolio. इस पर आप चले जाना, इस पर बजट का एक मेरा कोर्स है। So शिवानी, these chapters are more oriented towards prelims से भी पूछ सकते हैं, बट मेनली मेंस में ज़्यादा कुछ काम आएगा। इसमें बजट का एक मेरा कोर्स है, उसमें जो इस साल का बजट छोड़ दो, बट जो पुराने आइटम्स हैं, जो बजट का प्रोसेस क्या है, बजट इंट्रोड्यूस क्या होता है, वो एक बार कल देख लो। एंड वी विल कवर अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स टुमारो इन दी क्लास बजट के साथ में, क्योंकि आज बहुत सारे आर्टिकल्स सब जाएंगे तो हम वो सारे कवर कर लेंगे। एंड आई ऑलरेडी शेयर्ड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स ऑन इकोनॉमिक्स सर्वे विद यू, ठीक है, तो वो तो हमने ऑलरेडी कर लिया है। क्या कहते हैं, हम इस बार कल हम बजट के ऊपर भी काम करेंगे, बट लेट्स सी अ कपल ऑफ मोर थिंग्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स सर्वे में एक पॉइंट मैं भूल गया आपसे बताना कि इस बार, और जो मुझे प्रीलिम्स के लिए, ऐसे प्रीलिम्स के लिए पॉइंट्स समन आज तो मुझे याद है, एक है समथिंग कॉल्ड एज फ्लिप। इंडिया की करेंसी का जो स्टार्टअप्स है बहुत ज़्यादा फ्लिप करते हैं। अब वो फ्लिप क्यों करते हैं? वो फ्लिप इसलिए करते हैं क्योंकि इंडिया में जो टैक्सेशन लॉज हैं, इंडिया में जो कॉर्पोरेट लॉज हैं, काम करने के लॉज हैं, वो बहुत ज़्यादा टीडियस हैं। तो बहुत सारी कंपनीज इंडिया से अपना हेडक्वार्टर चेंज करके उसको सिंगापुर या दुबई बना लेते हैं, क्योंकि वहाँ से जो काम करना है वो बहुत इजी हो जाता है। वो बहुत इजी हो जाता है, इसीलिए क्या कहते हैं, क्योंकि वो इजी हो जाता है इसलिए बहुत सारी कंपनीज क्या करती हैं कि इंडिया की जो अपनी पेरेंट कंपनी होती है उसको बना लेती है सब्सिडरी, और अपनी पेरेंट कंपनी को क्या कहते हैं रजिस्टर कर लाती है सिंगापुर में या फिर दुबई में, जहाँ पर
जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो ये चीज़ को अब आप रिवर्स करने के लिए वो सारी की सारी चीज़ें इंडिया में भी रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो। सो उसको हम बोल रहे हैं कि रिटर्न आप अपने अपने रीफ्लिप कर रहे हो आप उनको वापस इंडिया में। तो ये एक प्रीलिम्स के एस्पेक्ट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इशू है। इसके ऊपर मैंने आर्टिकल शेयर किया था एंड जो भी मैंने कल आर्टिकल शेयर किया था आई विल आस्क समवन टू सेंड द पीडीएफ्स ऑफ दोज आर्टिकल्स, क्योंकि बिजनेस स्टैंडर्ड जो है इट्स अ पेड न्यूज़पेपर, पेड ऐप है, तो यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस इट। बट डेफिनेटली व्हाट आई वुड वांट इज़ कि आप लोग अगर शेयर कर सकते हो तो कुछ लोग मिलके शेयर करके, चाहे क्या कहते हैं इंडियन एक्सप्रेस यूज़ कर लो। तो यही हम मेंटरशिप में भी पीयर ग्रुप्स जो बनाएंगे, तो पीयर ग्रुप्स में आप ये चीज़ कर सकते हो। सो क्या कहते हैं इंडियन एक्सप्रेस जो है वो आपका ज़रूर होना चाहिए एंड देन वी विल थिंक समथिंग अबाउट द बिजनेस स्टैंडर्ड ऑल्सो। बट अगर आप उसका पार्ट नहीं हो मेंटरशिप का तो भी आप अपने आप भी ले सकते हो और किसी के साथ मिलकर भी ले सकते हो। सो दीज टू आर द न्यूज़ पेपर्स दैट आई फॉलो, इंडियन एक्सप्रेस एंड बिजनेस स्टैंडर्ड। ये दोनों आपको न्यूज़पेपर्स करना है, स्पेशली इकोनॉमिक्स अगर आपका ऑप्शनल है तो करना ही करना है दोनों चीज़ें। तो हिंदू इज़ गुड, यू कैन यूज़ हिंदू, बट मेरा प्रेफरेंस इंडियन एक्सप्रेस के लिए रहता है हमेशा ना। देन I'll गिव दी डिटेल्स। पहले हम बजट वगैरह कर लेंगे 2-3 दिन, फिर करेंगे। एंड एज आई टोल्ड यू दैट द मेंटरशिप विल बी फ्रॉम 4 to 5 ओनली, ठीक है, उसके अलावा और कोई टाइम नहीं होगा, यही दिस विल बी दी ओनली टाइम। And for those who are going to go for this mentorship, what is must is you must have a webcam, because you can't come for the class without your webcam being open. जैसा आज की क्लास में कई लोग सोते हुए कर रहे हैं, but that is not allowed. Why Indian Express has an edge over Hindu is my personal choice. मुझे ज़्यादा उनकी ऐप बहुत अच्छी लगती है मुझे, पहली बात तो। दूसरी वो जो उनका एक्सप्लेन्ड वाला सेक्शन है वो बहुत अच्छा है। फिर तीसरा उनका जो यूपीएससी की वाला सेक्शन है वो बहुत अच्छा है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छे से इन्होंने अपने आप को री इन्वेंट किया है। एंड इफ़ यू सी प्रीलिम्स के क्वेश्चन, स्पेशली साइंस एंड टेक के पिछले साल के और उसके पिछले साल के, आप काफ़ी सारे क्वेश्चन उनके एक्सप्लेन्ड से ही कर सकते थे। तो it has really done well. Nancy for IES business standard. So what we can do is, Tanmay, not for CSE 2024, this year's survey is not that important, but ये जो हमने बात करी ना कि क्या है, जैसे मीडियम टर्म के अंदर बात करी, जो फर्स्ट चैप्टर बात करी, ये आपको पता होना चाहिए। एंड इन जनरल यू शुड हैव फेयर आइडिया कि ये इकोनॉमिक्स में चल रहा है पिछले साल से, and then you will be able to write better answers because of this, because you know the history now. So this is how this goes. So someone has asked, philosophy is prelims or mains. uh, uh, this is not for either prelims or mains. This is generally to make you disciplined and to make you a better aspirant. So do not come with the expectation of studying something. We will be focusing on a little bit of meditation, journaling, and other aspects of UPSC prep with some amount of current affairs that you need to cover, ठीक है। and क्योंकि students काफ़ी ज़्यादा होंगे, mentorship for prelims and mains you will only be able to get, especially for people who are preparing for next year, if जो हम streak जो बात करते हैं, if you are able to survive in that program for फर्स्ट 21 डेज, क्योंकि 21 डेज यूजुअली लगते हैं किसी भी हैबिट को बिल्ड होने में, एंड देन फॉर 90 डेज। अगर हम 90 डेज उस प्रोग्राम में टिक गए हो, दैट मीन्स दैट नाउ यू आर इनेबलिंग योर सेल्फ कि अच्छा आप अच्छे से कर सकते हो। सो इट्स नॉट ईजी टू वेक अप एट 3:30 एंड कम फॉर अ सेशन एट 4 o'clock. सो आई नो दैट्स अ ह्यूज टास्क, बट दैट इज़ द सैक्रिफाइस दैट आई वांट फ्रॉम यू। उसके लिए आपको जल्दी सोना भी पड़ेगा। इफ़ यू आर एबल टू क्रिएट दिस, then you will get personal one-to-one, you will get a mentorship, you will create a peer, आपके साथ जैसे वाले लोगों को के साथ peer बनाएंगे, and we'll go for it. I'll not be able to help you in philosophy per se, in general, but yes, UPSC answers, economics, how to approach ethics, ये सारी चीज़ें we'll do it. If you want to talk to any civil servant कि अच्छा मुझे इस साल के टॉपर से बात करनी है, that we'll do, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। But for that, to be eligible for that,
you need to be sticking for these 90 days so as to know, for me to know that you are there in terms of potential. ठीक है. सो इसीलिए कह रहा हूँ कि उसके अंदर प्रॉपर आपका एक अटेंडेंस शीट होगा कि आप आए नहीं आए, आपने जो चीज़ें बोली गई वो आपने करी या नहीं करी. एनीवन कैन बिकम अ पार्ट ऑफ दिस मेंटरशिप प्रोग्राम. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन दैट. तो थिंक ऑफ इट ऑफ दैट कि मैं आपको एक पोटेंशियल दे रहा हूँ, पोटेंशियल क्रिएट करा रहा हूँ, एंड देन यू यूज योर पोटेंशियल. देन let's talk about this first कि हम इसमें क्या कर रहे हैं. मीडियम टर्म आउटलुक क्या है हमारा. तो वही बात है जो मैंने आपको बताया कि 2014 से 22 के बीच में वाइड रेंजिंग रिफॉर्म्स हुए हैं एंड स्ट्रक्चरल गवर्नेंस रिफॉर्म्स किए हैं सरकार ने. कैसे कैसे रिफॉर्म्स किए हैं, ये 4 चीज़ें आपको लिखनी होंगी जब नोट्स बनाओगे. तो पब्लिक गुड्स क्रिएट करें, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस किया, को पार्टनरिंग विद प्राइवेट सेक्टर किया फॉर डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी. इन 4 चीज़ों के ऊपर आपके 2 लाइनें होनी चाहिए, 2 पॉइंटर्स होने चाहिए उसके ऊपर. सो यूजुअली क्या होगा जब आपने इतने सारे रिफॉर्म्स, तो ये हमने रिफॉर्म्स किए बेसिकली. ठीक है, चैप्टर के अंदर डिटेल्स हैं सारे रिफॉर्म्स के, हर रिफॉर्म के अंदर क्या क्या किया है, तो वो आपको पढ़ना है. ठीक है. अगेन अ लॉट ऑफ फोकस ऑन द मेंटरशिप इज सेल्फ स्टडी. डू नॉट एक्सपेक्ट एनीवन टू स्पून फीड यू. अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो आप मेंटरशिप के लिए एलिजिबल हो ही नहीं. ये उन्हीं के लिए है जो खुद मेहनत करना जानते हैं. अगर आपको लगता है कि आप कोचिंग से कर लोगे या कुछ और कर लोगे, बेटर दैट यू डू दैट. ठीक है, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू. सो दिस इज ओनली गोइंग टू वर्क फॉर पीपल हु आर गोइंग टू बी वेरी सेल्फ मोटिवेटेड. और वहीं पे आयरन आउट हो जाएंगे कि अच्छा कौन मोटिवेटेड है और कौन नहीं है. सो आइडली जब आप ये सारे रिफॉर्म्स करते हो, ठीक है, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो इमीडिएटली आ जाता है. बट द आइडिया इज कि यहाँ पर इमीडिएटली आपको रिफॉर्म्स का रिजल्ट नहीं मिला. क्यों नहीं मिला? क्योंकि बहुत सारे क्राइसिस आ गए थे. तो व्हाई आई वाज टेलिंग दिस इज कि आज आप अपनी लाइफ में ये रिफॉर्म्स लेके आओगे तो उसका इम्पैक्ट आपको अभी नहीं मिलेगा. उसका इम्पैक्ट आपको 6 महीने में, 7 महीने में, साल बाद मिलना शुरू होगा. आपको रियलाइज होगा कि एज अ पोटेंशियल मैंने अपना पोटेंशियल क्रिएट कर दिया एंड देन उसके बाद वो एक्चुअलाइज हो रहा है. सो दैट इज़ वॉट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो ये आप पोटेंशियल क्रिएट कर रहे हो और उसका जो बेनिफिट है वो हमें इकोनॉमी में क्यों नहीं मिला? क्योंकि इकोनॉमी में क्राइसिस चल रहे थे. कैसे क्राइसिस चल रहे थे कि क्रेडिट बूम का एक क्राइसिस चल रहा था. बैलेंस शीट्स जो है इससे पहले जो था 2003 से 8 के बीच में इंडिया ने बहुत ज़्यादा लोन्स दिए थे. इंडिया में जो क्रेडिट साइकिल था वो बहुत ही ज़्यादा ऑफटेक पे था. तो उसमें आपने बहुत ज़्यादा लोगों को, विजय माल्या को और क्या कहते हैं, ये जितने भी एंटरप्रेन्योर्स थे, सहारा वगैरह, इन सबको बैंकों ने लोन दिया. बट इनकी क्रेडिट हिस्ट्री ठीक से नहीं दिखी और ये लोग कोलैप्स कर गए. और कोलैप्स कर गए तो एनपीएस हो गए. एनपीएस हो गए तो उनके बाद बैंक्स के बाद बाकी लोगों को पैसा देने के लिए नहीं था. फिर उसके बाद 2018 के अंदर नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एनबीएफसीज में भी क्राइसिस आ गया. ठीक है, एनबीएफसीज फॉर एग्जांपल एक आईएलएफसी का क्राइसिस है, आईएलएफएस का, वो पढ़ना. आईएलएफएस का क्राइसिस क्या था? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस का क्राइसिस आया, उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई. तो बैलेंस शीट्स बैंक्स की भी खराब हो गई और बैंक्स की बैलेंस शीट बेचारों की खराब है तो बैंक लोन कैसे देगा? लोन नहीं दे पाएगा. तो क्रेडिट नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा. तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एकदम से अटक गया. एंड उसके अलावा शॉक्स जो आने लगे इकोनॉमी में, कि कोविड का शॉक आया, फिर रशिया यूक्रेन का शॉक आया, चाइना का स्लो डाउन आया. सो ऑल ऑफ दिस ग्लोबल शॉक्स जो है, अब सिंक्रोनस मॉनेटरी पॉलिसी सबकी हो गई. तो ऑल दिस शॉक्स हैव इम्पैक्टेड आवर ग्रोथ एडवर्सली. बट ये जो है ये एनालोगस है 1998 और 2000 के बीच में, जहाँ पर सिमिलरली गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स किए थे. बट उसका फ़ायदा जो है मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ले गई थी. रिफॉर्म्स अटल बिहारी वाजपेयी ने किए थे बट उन सब का फ़ायदा जो है मनमोहन सिंह गवर्नमेंट को मिला. तभी उस पीरियड को हम बोलते हैं कि दैट इज़ द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियाज़ ग्रोथ. देन व्हेन वी टॉक अबाउट क्या कहते हैं मैग्नेट्स, तो हम कहते हैं कि मैग्नेट्स क्या है कि हमारी कमोडिटी प्राइसेस अब जो है वो स्टेबलाइज कर जाएंगी. ये जितने भी पैंडमिक के इम्पैक्ट है वो कम हो जाएगा. नाउ इज़ द टाइम दैट योर बैलेंस शीट्स आर क्लीन. बैंक, नॉन बैंकिंग एंड कॉर्पोरेट का फ्रेश क्रेडिट साइकिल ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और ऑलरेडी डबल डिजिट्स में है. इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फॉर्मल इकोनॉमी हमारी अच्छी से होने लग गई है. With all of this, now the prospects for medium term growth of 7 to 8% are really good.
ये अब आप कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द इंटायर चैप्टर. I want you to go through this chapter. I'll send you the mark copy of my notes by mid of the day, ठीक है, नहीं तो आप अपना आप भी देख सकते हो. एंड लेट्स देन टॉक अबाउट द बजट. जो आपको मैं बजट में आपको चीज़ें बताना चाह रहा हूँ. नाउ व्हेन यू विल सी माय वीडियोस, ठीक है, फॉर दिस ईयर्स बजट, आई वांट यू टू हैव अ लुक एट दीज. आज की वीडियो देखने के बाद आपको पता हो जाना चाहिए व्हाट आर दीज बजट, व्हाट इज, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज बजट एस्टिमेट, व्हाट इज रिवाइज एस्टिमेट, व्हाट इज एक्चुअल्स. ये आपको तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए. आपको हार्डली 15 से 20 मिनट देने हैं उन वीडियोज़ में, ठीक है. आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू इन वेरी क्विक टाइम, ठीक है, बिकॉज इतना टाइम नहीं होगा इन मॉर्निंग सेशंस के अंदर कि मैं आपको डिटेल्स बताऊँ. मैं आपको एनालिसिस ज़्यादा बताना चाह रहा हूँ. So this structure और anatomy आपको पता होना चाहिए बजट का, कि रिसीट साइड क्या है, कैपिटल साइड क्या है. मैं आपको जल्दी जल्दी ये भी कल बता दूंगा कि व्हाट आर दीज. टोटल एक्सपेंडिचर क्या होता है. यू शुड ऑल्सो नो व्हाट आर दीज 5 टर्म्स. इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड प्राइमरी डेफिसिट. ये सारे आपको टर्म्स पता होने चाहिए, ठीक है. एंड देन वी विल सी कि गवर्नमेंट ने ये जो इंक्रीज किया है, एक जो फोकल पॉइंट है गवर्नमेंट का, वो इस फोकल पॉइंट पे है कि गवर्नमेंट ने यहाँ किया. तो हम फोकल पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे. बजट के फोकल पॉइंट्स, बजट के फोकल पॉइंट्स हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो इकोनॉमिक सर्वे का भी है. और अब गवर्नमेंट कह रही है प्राइवेट सेक्टर को कि भाई तुम अपना एक्सपेंडिचर बढ़ा दो, मैंने अपना बढ़ा दिया. देन कैपिटल एक्सपेंडिचर भी में काफ़ी कुछ रेलवेज में गया है. देन दूसरा इज एग्रीकल्चर पे फोकस क्या हुआ है. तीसरा जो है आपका ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर फोकस गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा रहा है, ठीक है. देन हाउ डज द गवर्नमेंट इंटेंड टू अचीव इट्स फिस्कल डेफिसिट इन लॉन्ग रन. तो फिस्कल कंसोलिडेशन का पाथ क्या रहेगा सरकार का, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. देन एमएसएमईज के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, एमएसएमईज एंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए क्या किया है. सोशल सेक्टर में क्या क्या रिफॉर्म्स आए हैं. सी दिस वाज द लास्ट बजट बिफोर द इलेक्शंस. नेक्स्ट ईयर का जो बजट आएगा वो इंटरिम बजट आएगा. इंटरिम बजट का मतलब यही होता है कि वो कंप्लीट बजट नहीं है, क्योंकि क्या पता सरकार कोई और आ जाए. ऑफ कोर्स गवर्नमेंट यही आनी है इन ऑल लाइकलीहुड, बट द गवर्नमेंट कैन नॉट अज्यूम ना कि मेरी सरकार आएगी. तो इसलिए सरकार इंटरिम बजट लेके आती है जिस साल इलेक्शन होने होते हैं. और जब इलेक्शन हो जाता है तो फिर फुल लेंथ बजट लेके आती है उसके बाद इमीडिएटली. तो इंटरिम बजट आएगा नेक्स्ट ईयर. तो दैट मीन्स कि ये लास्ट फुल लेंथ बजट था. तो लास्ट फुल लेंथ बजट में यूजुअली सरकारों ने हमेशा बहुत सारे सॉप्स दिए हैं, इन द सेंस बहुत सारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर खर्च करती है, पॉपुलिस्ट पॉलिसीज बहुत सारी करती है. बट इस सरकार ने ऐसा कुछ नहीं किया है, विच इज़ टू इट्स क्रेडिट, कि डिस्पाइट बीइंग द लास्ट बजट बिफोर द फाइनेंशियल ईयर एंड और बिफोर द इलेक्शंस, इसलिए पॉपुलिस्ट मेजर्स नहीं लिया. और फिस्कल डेफिसिट का है कि मैं कंट्रोल कर लूँगा, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे. तो वील टॉक अबाउट कि ये क्या मेजर्स लिए हैं गवर्नमेंट ने भी यहाँ पर. और फिर हम इंडिविजुअल सेक्टर्स के बारे में जाएंगे. फिर पर्सनल टैक्सेशन में क्या हुआ है. देयर आर मेजर थिंग्स. गवर्नमेंट न्यू टैक्स रिजीम की तरफ लोगों को शिफ्ट करना चाह रहा है, तो वो क्या हुआ है. सो वील बी टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि बजट के डिटेल्स क्या हैं, जो आपको इस डॉक्यूमेंट में नहीं मिलेंगे, जो आपको एडिटोरियल पढ़ने से ही मिलेगा. तो वील गो थ्रू मल्टीपल एडिटोरियल्स इन टुमारोज क्लास. सिंस वी विल नॉट गोइंग टू डू दिस सर्वे, तो हम इसके बारे में डिटेल में बात करें. फिर उसके बाद वीकेंड 2-3 दिन जब हम सर्वे के बारे में बात कर लेंगे, इसके बजट के बारे में बात कर लेंगे, then we will start our mentorship somewhere around 4th or 5th से mentorship शुरू करेंगे. So the mentorship will be from Monday to Friday, no, not on Saturday Sunday. तो हम probably will start it from Monday then. Mentorship weekend पे you can enroll yourself there, and the details, everything, all details will be there on Edfolio. तो Edfolio पे mentorship का वो आ जाएगा. But do remember you will not be eligible for that if you don't have a webcam. ठीक है, वेबकैम और एक्सेल दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेल पे मैं आपसे एक शीट बनवाऊंगा कि आपका आउटपुट क्या है, दिन में आपका आउटपुट क्या है और आपने क्या करा है इन टर्म्स ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग. ठीक है,
yes, anyone can join that particular program, even if you're not preparing for civils, then also you can join that program. That's basically a potential creating program. उसमें मैं पढ़ा कुछ नहीं रहा हूँ, करंट अफेयर्स हाफ एन आवर प्रॉब्ली I'll take करंट अफेयर्स की क्या क्या हुआ और क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है. एंड मेजरली 15-20 मिनट्स मेडिटेशन पे फोकस होगा. एंड देन जर्नलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आज आप दिन में क्या करोगे. इट्स बेसिकली मेकिंग यू अकाउंटेबल फॉर इन अ ग्रुप फॉर्मेट कि अच्छा हम सुबह उठे हैं, अब हम काम करेंगे और हम डिजिटल डिटॉक्स में काम करेंगे. नो इंस्टाग्राम, नथिंग नथिंग, नो काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन. वो आपको फुल लेंथ पोटेंशियल में आपको देना चाहता हूँ. एंड एक मॉनिटर करना चाहता हूँ साथ में कि आप वो उसको फॉलो कर रहे हो नहीं कर रहे. एंड मंथ एंड में इट विल बी अ मंथली प्रोग्राम. मंथ एंड में यू विल हैव अ केयर कॉल फ्रॉम इटफोलियो सिंस आई हैव टाइड अप विद देम. तो समवन फ्रॉम द टीम विल कॉल यू अप टू असेस कि आपका क्या है असेसमेंट है. एंड if the assessment is not okay, then you will be removed from the mentorship. So this is what the program, and it's going to be a paid program. So जो current affairs वाला portion है that I'll keep on putting, and I'll keep on putting very soon I'll keep on putting lectures on GS as well. वो सारे हम open sessions लेंगे, जैसे ये वाले sessions हैं वो सारे हम open sessions लेंगे. जितने भी हमारे sessions होंगे वो सारे open sessions हैं. But this is a closed program, the mentorship. Yes, you can, Nancy, you can join from your phone as well. Okay, but what is mandatory is that you should I mean, even I'll go live in terms of the video, so that is absolutely mandatory. So this is about it, folks, from my side for today. We'll be talking about the budget tomorrow, and आज मैं आपको बहुत सारे आर्टिकल्स भेजूंगा. प्लीज़ गो थ्रू दोज आर्टिकल्स. जैसे कल मैंने आपको बहुत सारे भेजे थे, तो प्लीज़ गो थ्रू दोज आर्टिकल्स एंड देन वील बी रेडी फॉर टुमारो टू एनालाइज द बजट. ठीक है, चलो. सो आई विल साइन ऑफ फॉर टुडे एंड सी यू टुमारो, folks. हैव अ ग्रेट डे.